viewers, welcome to Nation TV India. KSFA, Nelapad Academy and Boring Institute felicitated mixed martial arts fighter Mohammad Farad. On March 17th, Karnataka State Football Association, Nelapad Academy and Boring Institute jointly felicitated mixed martial arts fighter Mohammad Farad for his recent victory. Farhad scored a fantastic one-punch knockout of Pakistan's Ulomi Karim in the mixed martial arts promotion held in Bahrain on March 11th. Mohammad Farad said in the press conference that in recent times mixed martial arts has gained immense popularity. This sport requires intense practice and effort and immense strength. I am happy that I was able to knock out our arch rival in a fight. I am thankful to KSFA, Nelapad Academy and Boring Institute for recognizing my achievement and honoring me. Speaking on the occasion, KSFA President and Legislator N.A. Harris said that it is a matter of pride that a Bangalore boy has achieved victory at the international level. It is our prime duty to encourage such talent. The association is committed to support Farhad. I hope that Farhad's victory serves as an inspiration to more young people to take up this sport. And today is a proud moment, example being in the Karnataka State Football Association. Speaking on the occasion, KSFA President and Legislator N.A. Harris said that it is a matter of pride that a Bangalore boy has achieved victory at the international level. It is our prime duty to encourage such talent. The association is committed to support Farhad. I hope that Farhad's victory serves as an inspiration to more young people to take up this sport. He's representing at the highest level than ever in any sports. Umar Harris Nelapad, Director Nelapad Academy, said that at the academy sports was given importance. We are thinking about introducing mixed martial arts in our academy. All India MMA Federation Joint Secretary and Trainer Abdul Munir, who spoke on the occasion, said that Farhad has put considerable effort for his victory. The Pakistani fighter Ulomi Karim has defeated several Indian fighters in the past. There is a lot of pressure on Indian sportspersons. They are facing arch opponents. All India MMA Federation President Aditya and Boring Institute Joint Secretary Srikanth were present on the occasion among others. सपोर्ट करना भी चाहिए और हम लोग ये स्पोर्ट्स को भी एनकरेजमेंट देना चाहिए. तो आज MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा फास्ट से डेवलपमेंट हो रहा है इधर इंडिया में एंड पर्टिकुलरली इन बैंगलोर. हमारा नलपाड एकेडमी भी स्टार्ट करे हैं MMA बच्चों को ट्रेनिंग देना. आई थिंक एज मैं अभी फुटबॉल एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट होने से हमारा प्लेयर्स को स्टेमिना डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है MMA से. सो यू फिजिकली मेक योरसेल्फ मोर फिट. आप देख सकते हैं कैसा है फरदान करके. कब हुआ था और कितना इम्पोर्टेंट था इंटरनेशनल लेवल पर और इसके साथ खुशी की बात है ये सब. ये ब्रेव 47 इज़ एन इंटरनेशनल क्लब. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या है, जान भी जा सकता है, ऐसा इवेंट है ये डायरेक्ट मारने का. इसमें कोई प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, डायरेक्ट 1-to-1 फाइट है. सो इसमें बहुत तैयारी भी होना चाहिए. जब तक तैयार नहीं होता है इसमें फेस करना मुश्किल होता है. तो हमारा बच्चा अच्छा तैयारी करके जाके जीत कर आए. इट्स ए इंटरनेशनल इवेंट. अभी इंडिया में इसका उतना पब्लिसिटी नहीं है. तो हम लोग 1-2-3 इवेंट करे हैं और माइक टाइसन सभी आके एनकरेज करे हैं. बट इंशाल्लाह आगे हम लोग मे बी कर्नाटका फुटबॉल एसोसिएशन इज लुकिंग एट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट ऑल्सो एट एन इंटरनेशनल लेवल. लेट अस सी. वी वांट टू सपोर्ट एंड इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग. तो आपकी एकेडमी की तरफ से इन्हें मदद भी दी गई है सर फरहाद को वहाँ तक जाने के लिए. बहरन तक कैसा गया? फ्लाइट में गया. बहरन तक टिकट लिया, फ्लाइट में गया. नहीं देखिए ये चीज़ जो है हमें इधर बैठे हैं बोले तो उसको साथ दे रहे हैं हम लोग. हमें देखिए ये चीज़ में क्या है, दिल से जो काम करता है वही इम्पोर्टेंट है.
और इसमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत अपने आप में आने तक ये सब नहीं कर सकता है। तो आई थिंक आप भी उनको सपोर्ट देना है। हमें जिस तरीके से हम सब मिलके उनको एनकरेज करना चाहिए। उनको ही मालूम नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, अभी हम बोलने में आपको मालूम हो रहा है, तो आगे हम लोग करेंगे। क्रिकेट एक ही क्या गेम नहीं ना, सब गेम बच्चे। अभी हमारा 130-40 करोड़ पॉपुलेशन है, हर फील्ड में हमारे बच्चे आगे आना चाहिए। नहीं, इस गेम को भी फैसिलिटीज मिल रहा है क्या ज़्यादा? नहीं, मिलेगा। अभी हम लोग आगे जाकर गवर्नमेंट से भी पूछेंगे, फैसिलिटीज़ बनाने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोग भी अभी फुटबॉल एसोसिएशन हम आगे आए, नालापाड एकेडमी आए हैं, बोरिंग इंस्टीट्यूट आगे आकर मदद कर रहे हैं। तो हमारा ऑल इंडिया ये मिक्स मार्शल आर्ट्स का फेडरेशन है, सब लोग काम कर रहे हैं इसमें। ऑल आर हुआ एक्चुअली बहरीन में, और ये 5 मिनट का एक राउंड होता है। इसमें 3 राउंड खेलते हैं, और अगर चैम्पियनशिप बेल्ट फाइट हो तो इसमें 5 राउंड खेला जाता है। और इसको मैंने सेकेंड राउंड में हराया। इस फाइटर का नाम था उलूमी करीम, और ये पाकिस्तान का बहुत तगड़ा जो है एथलीट है, और इसको थाईलैंड में भी बहुत इसका नाम है उलूमी का। तो ये चैलेंज एक्चुअली बहुत टफ़ था, जो कि इसके लिए उतना टफ़ ट्रेनिंग भी किया हूँ। और ये जीत हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्योंकि पहले भी एमएमए शोज़ अभी से नहीं हो रहे हैं, बहुत पहले से हो रहे हैं एमएमए शोज़। और 2 बार जो है पाकिस्तान का 2 विन ऑलरेडी हो चुका है इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये जो 3rd फाइट थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जिसके अंदर हमारा विन बहुत ज़रूरी था। और जिस तरीके से विन हुआ है हमारा, वो एक्चुअली बहुत एक फैंटास्टिक विन है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत बहुत हैप्पी मोमेंट है। बहुत ऊपर रहता है, उसमें फाइट करना है, वो हाई लेवल में फाइट करना है, तो कितना स्टैमिना, कितना मेहनत करना है इसमें आप सोच सकते हैं। एक्चुअली फराद ने किया है, सेकेंड राउंड में नॉकआउट किया है। अगर 3rd राउंड में गए तो भी रुकना है, 10 मिनट के बाद भी रुकना है। 1 मिनट इंटरवल रहता है, 5 मिनट्स के बाद 1 मिनट इंटरवल रहता है, फिर अगला राउंड शुरू होता है। ऐसा है एक गेम मिक्स्ड मार्शल आर्ट। अभी हमारा फराद ने बोला था वो अगला दूसरा स्पोर्ट्स का एथलेट्स को लिए क्या मिलता है इसमें एमएमए में, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, हार्ट लेवल इनका ट्रेनिंग तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग रहता है, इसमें ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग रहता है। पूरा जॉइंट्स और बॉडी पार्ट सभी स्ट्रेंथनिंग रखना पड़ेगा, नहीं तो चला जाएगा, टूटा जाएगा। वो लोग मारता है ना, इतना ज़ोर से मारता है, हमें पता नहीं लगता है। एक्चुअली वो पाकिस्तानी फाइटर है ना, वो तो मुआय थाई में ट्रेनिंग किया है थाईलैंड में, वो भी बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। मुआय थाई का भी बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। फराद भी मुआय थाई का सीखा है, सभी सीख के इसमें जीता है और हमारा देश के लिए जीत लेके आए।